Hello students, welcome to another important video series where I am going to start another playlist for you for upcoming examination, and this playlist is basically from the arithmetic section, and I'll be providing you more than 200 questions from the arithmetic that you must try and solve before the examination. So today we'll be taking around 5 to 7 questions, and this video series will be in parts, of course, right? We have to follow the playlist, right? So we have the first question. It is from basically ये जो सीरीज है इसमें मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे. तो पहला दोस्तों सवाल है सिंपल इंटरेस्ट का. बोलता है कि वीरू ने 10,000 रुपये लगाए हैं 5% के सिंपल इंटरेस्ट पे, और एग्जैक्टली आफ्टर 2 ईयर्स जॉय ने 8,000 रुपये 10% के हिसाब से लगाए हैं. तो कितने सालों बाद वीरू का इन्वेस्टमेंट और जॉय का इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएगा, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट, राइट? So there are many ways of solving this question, but I'll try to explain in the detail and the basic manner so that you can have the idea, right? I can provide you the shortcuts also, but you have to just understand the basics so that you can try the questions. So it is saying that Viru is one person. Viru has 10,000 rupees, and rate of interest is 5% per annum, right? And if I talk about Joy, Joy has 8,000 rupees at 10%, right? तो लेट अज्यूम कर लेते हैं, लेट आफ्टर 3 years both have same amount. So we have assumed that after 3 years both have same amount, right? What does it mean actually? That this will be the initial amount with the Viru, that is 10,000 plus. In simple interest, you know that SI equals to P into R into T upon 100, where P is the principal, R is the rate, and T is the time. So I have given T years for Viru because after 2 years Jay has invested. So of course there will be a gap of 2 years between Viru and Jay's investment, right? So 10,000 plus 10,000 into 5 into T upon 100. I believe it is clear. And similarly this has to be equal with that is Joy, 8,000 plus 8,000 into 10 into T minus 2, because इसके पास 2 साल कम का टाइम पीरियड है इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट? सो आई कैन सॉल्व इट वेरी इजीली एक्चुअली. सो दिस इज, इसको पहले लेके आते हैं, 2,000 हो जाएगा ये, एंड दैट विल गिव मी 800 T माइनस 2, एंड इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 500 T, राइट? सो दिस इज 800 माइनस 500 इज 300 T, and this is 8 into 2 1600, and that will be here also 1600 plus 2000, that will give me 36. So यहाँ से दोस्तों T का जो वैल्यू आएगा that will be 12. So T is coming out to be 12. The question is that exactly how many years after Viru's investment. तो वीरू के कितने साल बाद इन्वेस्टमेंट जब उसने किया, तो T is a time period फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, राइट? तो इसका आंसर 12 ईयर्स आ जाएगा. अगर ये क्वेश्चन बोलता कि जॉय के पर्सपेक्टिव से, तो आंसर वुड हैव बीन 10 ऑल्सो. आई बिलीव इट इज क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एंड आई थिंक लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है that Meenu purchases a pair of sunglasses for rupees. Meenu has purchased sunglasses for rupees 1,000, right? For rupees 1,000, and sells it to Kanu at 20% profit, right? तो 20% प्रॉफिट कमाना है, तो 1000 का 20% वुड बी 200. तो कनु को ये सनग्लासेस 1200 रुपये के मिलेंगे, एंड देन कनु सेल्स इट बैक टू मीनू. कनु ने वापस से इसको मीनू के लिए बेच दिया. बट ये मत समझो कि मीनू पुराना वाला एक पर्सन है जहाँ से उसने खरीदा, ये समझो कि मीनू एक नया पर्सन है. तो अब जो सीपी बनेगा कनु के लिए 1200 रहेगा ऑफ कोर्स, और उस पर ये बोलता है कि 20% का नुकसान है, हाँ, 20% लॉस. तो 20% ऑफ दिस 1200 वुड बी माइनस 240. तो ये मिलेगा आपको 960 का, राइट? तो मीनू ने वापस से इसको 960 में परचेज कर लिया. आई होप इट इज़ क्लियर. तो आई कैन सी कि मीनू के पास ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है, क्योंकि मीनू ने यहाँ पे 200 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया है. आई होप इट इज़ क्लियर, राइट?
20% माइनस कर दिया। नाउ फाइनली मीनू सेल्स द सेम पेयर ऑफ सनग्लासेस टू द तनु। अब मीनू को ये बेचना है तनु को, और क्वेश्चन ये है कि तनु को बेचने के लिए कंडीशन, इफ द टोटल प्रॉफिट मेड बाई मीनू ऑल हर ट्रांजेक्शन इज 500 रुपीज़। भैया जो मीनू के पास प्रॉफिट है वो 200 रुपये का हो चुका है, तो 500 रुपये करने के लिए उसको कितना और प्रॉफिट रिक्वायर है? तो यू विल बी सेइंग सर 300 रुपये और चाहिए मीनू को, राइट? तो यहाँ पे हमको 300 रुपीज़ का और प्रॉफिट चाहिए। तो वी हैव टू आस्क दैट वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज मेड बाई मीनू, राइट? तो प्रॉफिट परसेंटेज मेड बाय मीनू, तो 300 रुपये कमाने हैं और 960 का उसका इन्वेस्टमेंट है इंटू 100। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट? तो आप देखोगे भैया अगर मैं इसको नॉर्मली भी सॉल्व करता हूँ विदाउट 100, तो दिस इज 30/96, ठीक है। अब देखो इसका जो 10% होगा दोस्तों, ये होगा 9.6। तो इसको मैं 30 टाइम्स करूँगा, तो अगर मैं इसको 30 टाइम्स कर रहा हूँ या 30% करता हूँ, दैट इज़ 3 टाइम्स इसको करेंगे। इसको 3 टाइम करने पर मिलेगा 6 18, 9 27 और 1 28, तो 28.8 मिलेगा। बट आपको तो 30 पे जाना, थोड़ा सा 30% से एक्स्ट्रा होगा। ये थोड़ा सा बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे आपको बार बार डेसिमल वगैरह से बचना है, आपको अप्रॉक्सीमेशन आना चाहिए। तो इस सवाल में दोस्तों जो आंसर बनेगा वो 31.25 बनेगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि 31.25 इसलिए भी बनेगा क्योंकि यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है। हाँ, 96 में 4 दिखता है, और 4 जब डिवाइड करेगा तो 0.5 0.25 ऐसे करता है। वो 100% टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको देने वाला है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। We have another question. It is from basic percentage that out of the shirts produced in a factory 15% are defective. तो मान लेते हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा तो ये मान लेते हैं कि जो टोटल शर्ट्स हैं उसमें 100x हैं, तो डिफेक्टिव कितना हो गया दोस्तों? तो डिफेक्टिव है 15%। 15% ऑफ किसका? अपने आप से पूछो, 100x का, मतलब 15x आपको माइनस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर जो बैलेंस बचेगा अभी, ये जो बैलेंस बचेगा बच्चों, दैट वुड बी 85x। आई बिलीव इट इज क्लियर। नाउ वाइल 20% ऑफ द रिमेनिंग, इसका 20%, तो 20% ऑफ 85x ये हो जाएगा 17x, राइट? ये 17x दोस्तों फिर से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि रिमेनिंग में कुछ माइनस करना है। आर सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट, राइट? तो ये जो 17 शर्ट है ये डोमेस्टिक मार्केट में बेची है। इफ द रिमेनिंग देर आर 8840 शर्ट, तो बची कितनी आप सोच के देखो भैया। 85 में से 17 गई तो बचेगा 68x, और इसकी वैल्यू सवाल में 8840 दे रखा है। अब मेरे दिमाग में थोड़ी सी खुरापात ये है कि 8 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 8 8 जा 64 होता और 8 3 जा 24 होता, मतलब लास्ट में 3 या 8 का ही कॉम्बिनेशन कुछ बनने वाला है। आपसे बोलता है नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री, तो टोटल वैल्यू बेसिकली, तो ना 68x का वैल्यू अगर 8840 है तो x का वैल्यू आएगा 8840 अपॉन 68, तो 17 4 जा 68 है, एंड 17 5 जा 85 बचेगा 3, 17 2 जा एंड 4 से हो जाएगा ये 30। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स आपसे पूछा गया है दैट इज़ 100 इंटू 130, तो 13,000 दोस्तों इस सवाल का एकदम से राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर है। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट? आगे बढ़ते हैं।